क्या आपको ये लगता है कि आपको आपकी सारी वैक्सीन्स बचपन में ही मिल चुकी हैं, या फिर आपको ये लगता है कि वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है? हम में से कई सारे लोग हैं जो वैक्सीन्स के बारे में गलत या अधूरी जानकारी रखते हैं, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन, योर लंग हेल्थ माइट ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन. आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना, और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कई सारे लोगों के मन में काफी डाउट्स क्रिएट करती है. दैट इज वैक्सीन्स एंड इट्स कनेक्शन विद लंग हेल्थ. टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, जॉइनिंग अस टुडे इज डॉक्टर अपार अग्रवाल, a distinguished chest physician practicing in Meerut with his expertise in respiratory medicine, critical care and intervention pulmonology. With advanced training from Max Hospital, Delhi, Dr. Agarwal brings wealth of knowledge in managing complex respiratory conditions. So let's give a warm welcome to Dr. Agarwal and learn more about it. Hello, Dr. Agarwal. And Hello, ma'am. thank you so much for giving so much of your inputs to the show and then being a part of the show as well. And then I'm really feeling great to sit with you today and conduct this podcast on the awareness of adult vaccination, specifically for respiratory conditions. So how do you feel about it? I'm feeling equally enlightened. It is a great meeting the team, meeting the Swasthya, knowing about the Swasthya 365 program, super program. I even myself learned a lot from the team, and let's see. I give my best to this channel. I'm sure. So firstly, so let's start with how was your journey as becoming a doctor, and after that specialization into pulmonology. तो आम भाषा में कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? जज, आई एम टेलिंग यू, द जितना टाइम मैंने अपने तभी स्पेंड किया, आई वाज लाइक व्हाई इज दिस मैन नॉट अ लॉयर और अ जज? सीरियसली, आई हैड दिस ओपिनियन इन माय माइंड. Perfect. So I think your judgment is absolutely right. Initially, I wanted to go into the judiciary, but because my father is a doctor, I have admired him a lot. So I've seen good senior doctors around me who have done really great for the society. So eventually, I then studied and molded myself in the healthcare field, and I'm glad. I'm really happy. We are really glad. Thank you so much. Then eventually, while choosing the specialty, so when I chose being a pulmonologist, then in my medical college, this was considered to be less important branch. More glamorous was like MD medicine, general surgeries, dermatology, radiology. But I have a different opinion towards society. I myself think that do one thing, but do your best. That is true. So I chose कि I should be reading about or working about a single organ, and I should be having my best of the best expertise in managing that organ rather than the whole body and True. doing a general thing. This is my approach to the Okay, understood. work thing. So I chose lung specialist, pulmonologist as a field. You have a lot of clarity about everything in your mind. That is what I've come across after talking to you. Hopefully. And then what are the conditions, और ऐसे कौन सी चीज़, मतलब पेशेंट को एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास क्यों आना चाहिए? कब, rather than क्यों, कब आना चाहिए? कब आना चाहिए? See, pulmonology means lungs specialist. So जो भी symptoms हमारे लंग्स को तंग करते हैं या लंग्स को तंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हल्का हल्का सांस में दिक्कत आना, चेस्ट में मीठा मीठा दर्द बना रहना, खांसी होना, नई खांसी या फिर ऐसी खांसी जो कमती बढ़ती है काफ़ी समय से जो जा नहीं रही. तीसरा, किसी भी प्रकार के आपके इन्फेक्शंस हो जाना इन द लंग्स, लाइक बैड फीवर, बैड कफ, बैड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्वेटिंग हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड अगर वेट लॉस होना शुरू हो जाए, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, विच इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, विच इज़ अगेन अ डिसीज ऑफ लंग्स. एंड देयर वेरीज अदर सिम्टम्स. सी, सांस फूलना या खांसी होना सिर्फ एक लक्षण है. वो लक्षण के पीछे आई थिंक मोर देन 20 और 50 डिसीज़ेज़ छुपी हैं. सो ये सब को कौन सी बीमारी है या क्या उसका इलाज है. सो pulmonologist or a lungs specialist is a right doctor. We can go and meet
and talk and discuss your problems, and he'll give you a solution as per his experience. I'm sure this is going to help most of our people to understand कि ये सब अगर कुछ भी symptoms हैं तो आपको एक pulmonologist को visit करना है. Yes. So, sir, coming to the topic today, which is adult vaccination, like and the myths which are surrounding around adult vaccination. तो इसमें आई वांट टू नो कि व्हाट इज़ द अवेयरनेस, कि इतना अवेयरनेस कम क्यों है लोगों में अबाउट वैक्सीनेटिंग. उनको लगता है कि जितनी भी सारी वैक्सीन है बचपन में ले ली है तो अब 12 साल होने के बाद वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली रेस्पिरेटरी कंडीशंस को लेके. Great. See, it's a very good question, and I'm rather happy to answer this question. ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं खुद पर्सनली हर पेशेंट को पर्सनली गाइड करता हूँ ओपीडी में, कि आपको बीमारी हुई, आपने डायग्नोसिस करा लिया, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, बट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि वो बीमारी दोबारा होने से कैसे बचें. करेक्ट. सो वो दोबारा होने से कैसे बचने, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. उसका वन ऑफ द आंसर इज़ हैविंग योर वैक्सीनेशंस राइट. जो भी ये वैक्सीनेशन होता है ना, ये वैक्सीनेशंस डॉक्टर या सोसाइटी डिसाइड नहीं करती. इट इज़ अ प्रॉपर चैनल. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ स्टडी ऑफ मल्टीपल ईयर्स, कई सालों की पुरानी स्टडीज़ होती हैं, डेटाज होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए और ऐसी वैक्सीन इस बीमारी में लगनी चाहिए. दिस इज़ आउट ऑफ डेटा एंड एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ईयर्स. That is true. So talking about respiratory vaccines today, can you name some specific vaccines जो respiratory conditions को वापस होने में भी वापस नहीं होने से भी मदद करती है या फिर ना होने ही नहीं देती है, like it prevents? Right. So if we're talking about like specifically for respiratory conditions, 3 vaccines are very important. One is the influenza vaccine, फ्लू वैक्सीन, जिसको हम आम नाम से हम सब जानते हैं फ्लू शॉट्स, जो कि ईयरली लगाया जाता है. कैसे लगना है, what are the indications, you should go and meet your doctor. So one is your flu shots. Second is pneumonia की vaccine, which is called pneumococcal vaccines. He will guide you, but vaccination second is pneumonia का. Third is जो अभी रिसेंटली गाइडलाइंस या डेटा में ऐड हुआ है, दैट इज डिफ्थीरिया, टीडैप वैक्सीन. 50 ईयर्स की एज के ऊपर टीडैप इस गाइडलाइन में एक्सेप्ट हो गया है कि 50 ईयर्स की एज के ऊपर आपको टीडैप लेना भी ज़रूरी है और हर 10 साल में उसका भी बूस्टर लगना चाहिए. सो दीज 3-4 आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो होनी चाहिए. सो ऑल्सो जो पेशेंट, जैसे पे आपने मेंशन किया कि 50 एज के ऊपर ये वाली वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर 45 के ऊपर जो भी पॉपुलेशन है उनको बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस भी होते हैं. कोमॉर्बिडिटी से मेरा मतलब है कि बाकी कंडीशन जैसे कि एग्जांपल डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या कोई और कंडीशन, हाइपरटेंशन. तो इन केसेस में ये वैक्सीन साथ ले सकते हैं, या अगर ले सकते हैं तो कितनी इम्पॉर्टेंट है ये वैक्सीन लेना? राइट. सो जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनके लिए वैक्सीनेशंस आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट. सी, कोमॉर्बिडिटीज से हम ये समझते हैं कि अगर किसी को शुगर है या कोई हार्ट पेशेंट है तो वो एक आम या एक हेल्दी इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा बीमार होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी रखता है. यानी कि हमें अपना ध्यान और ज़्यादा रखना है. सो talking about specifically if we talk about pneumococcal vaccines और influenza vaccines, तो इनके एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं which defines कि अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एस्थमा है, COPD है, तो आपको अपना वैक्सीनेशन कंपल्सरी कराना है एज पर योर डॉक्टर्स गाइडेंस. इट इज़ कंपल्सरी. सो लोग किसी के दिमाग में ये भी मिथ होता है कि जैसे कि अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयरली डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग टू द पीपल कि आप या वंस अ ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लो. तो उनके दिमाग में ये भी आता है कि अब मैंने ले लिया ये वैक्सीन तो अब मुझे फ्लू नहीं होगा, तो नाउ आई नीड नॉट टेक अनदर वैक्सीन शॉट. ओके. सी, वैक्सीन का ना
एक एफिकेसी का एक पीरियड होता है। सी वैक्सीन जो डिफ़ाइन करी जाती है, उसकी ड्यूरेशन जो डिफ़ाइन करी जाती है, या ये कह लीजिए कि वैक्सीन कब लगनी चाहिए, वो जो डिफ़ाइन होता है ना, उसका एक साइकिल होता है। अगर आपने एक बार वैक्सीन लगा ली है, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम वैक्सीन टू वैक्सीन कि कौन सी वैक्सीन है जो कि हर साल लगनी ज़रूरी है, कौन सी वैक्सीन है जो आपने एक बार लगा ली और इसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इट वेरीज फ्रॉम वैक्सीन टू वैक्सीन। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंजा, फ्लू की शॉट्स की बात करें, तो गाइडलाइंस या लिटरेचर या रिसर्च ये कहता है कि ईयरली जो वायरस के म्यूटेशंस या जो स्ट्रेन्स होते हैं, दे वेरी, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से भी स्पेसिफिकली वेरी करते हैं। सो आपको फ्लू शॉट हर साल लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए। कब, कितना डोज, गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड ही विल गाइड यू द बेस्ट। सो देर आर पीपल जो सोचते हैं कि वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बार बार ही बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार ही सर्दी खांसी या एलर्जी या कुछ और प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली होती रहती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बाकी जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस है जिसकी सिम्टम्स थोड़े माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, तो वो अपने आप ही मैनेज करके ठीक हो जाते हैं। तो इन लोगों में कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन्स लेना? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लेना अपने आप में इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरा इसमें टेक ये है कि अगर पेशेंट हेल्दी है तो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक अनहेल्दी पेशेंट का वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो पेशेंट हेल्दी है उसे अपनी हेल्थीनेस को मेंटेन करने के लिए भी वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर कोई अनहेल्दी पेशेंट है, बी एट सीजनल राइनाइटिस होता है, साइनोसाइटिस जल्दी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा जल्दी हो जाता है, सो ये सब अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी को बताते हैं। यानी कि अगर आपको सामाजिक बीमारियों से, जैसे कि बदलते मौसम में फ्लू हो जाना या एक से दूसरे को निमोनिया हो जाना, इन सब से प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सो ऐसे कौन सी डिजीज़ हैं जो कम्प्लीटली प्रिवेंट की जा सकती है जस्ट बाय टेकिंग द वैक्सीनेशन? सुपर्ब। सो जो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री में जाऊं, गवर्नमेंट ने पोलियो वैक्सीन्स बनाई, मतलब कि बिकॉज ऑफ ओनली वैक्सीनेशन वी कैन प्रैक्टिकली इरेडिकेट एन इलनेस फ्रॉम द सोसाइटी। दिस मीन्स कि हाउ इम्पोर्टेंट द वैक्सीनेशन इज। पोलियो वैक्सीन्स, constant counseling. Today we have almost nearly eradicated a whole disease, polio. Second is measles. अगेन सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से आज हम चिकन पॉक्स पे काफ़ी हद तक कंट्रोल ला पाए हैं। तो वी कैन प्रैक्टिकली इरेडिकेट द डिसीज फ्रॉम द कम्युनिटी जस्ट बाय मेयर वैक्सीनेशन। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी इलनेस, बी इट अस्थमा, बी इट COPD, इट इज़ कंपल्सरी कि हम अपना वैक्सीनेशन कराएं एंड अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। सो जैसे कोविड में भी सेम सिनेरियो हुआ कि वो होने की वजह से वैक्सीनेशन इतनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हम लोगों को टू कम आउट ऑफ द कोविड सिचुएशन, बट देर आर सर्टन पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु स्टिल थिंक कि कोविड हो गया एंड नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, सो अभी हम लोगों को वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं OPD में बहुत रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं कि पेशेंट बोलता है कि भाई मेरे को नेचुरल इम्यूनिटी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो मुझे तो अब फ्लू हो गया है, मेरे तो नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन गया। सोचना गलत नहीं है, राइट, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एज अ डॉक्टर, या अगर हम लिटरेचर को देखें, हम साइंस को देखें, तो वो ये कहता है कि नेचुरल कोई भी जो बीमारी होती है ना, अगर हम सिर्फ मीज़ल्स की बात कर लें, मीज़ल एक ऐसी बीमारी है, हमें हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, बट मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कि मीज़ल्स के साथ निमोनिया हो जाता है, मीज़ल्स के साथ सीज़र, एनसेफेलोपैथी भी हो जाती है, मीज़ल्स में कभी कभी गंभीर बीमारी में डेथ भी हो सकती है। यानी कि इतने कॉम्प्लिकेशंस और इतनी डेंजरस डिसीज़ को फेस करना पड़ेगा तब जाके नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन इज़ अ सेफर ऑल्टरनेटिव। आपने मीज़ल का वैक्सीन लगाया, वो एक सेफली आपकी बॉडी को विदाउट फेसिंग दोज नेचुरल कॉम्प्लिकेशंस
आपने इम्यूनिटी बना ली, तो आपको नेचुरल कॉम्प्लिकेशंस भी फेवर नहीं फेस करने पड़े, आप पे इकोनॉमिक बर्डन नहीं आया, आप पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं आया, एंड यू आर गुड टू गो। सो आज भी ऐसे कंडीशंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया है जिसके वजह से पीपल आर डाइंग एंड द मोर्टालिटी रेट इज़ क्वाइट हाई. यस, So in this scenario, vaccination I feel can prevent the disease A. यस, Secondly, अगर आप इसको फिर से नहीं होना देना चाहते हो, Yes. तभी भी ये वैक्सीनेशन उतना इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यस, एंड आई स्टिल फील दैट पीपल डोंट टेक दिस सीरियसली. यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करा, सो डायग्नोसिंग अ डिसीज, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आई अंडरस्टैंड एज अ डॉक्टर, बट प्रिवेंशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. दैट इज व्हाट. सो अगर मैं किसी को ओपीडी में बोलता हूँ कि भाई आपको टीबी हो गया, आप ठीक हो गए, नाउ यू शुड गो फॉर अ वैक्सीनेशन. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉट by the World Health Organization, and it is my duty to pass on to my patients. I tell them कि go your vaccination, go get your vaccinations as per the protocols. So उसमें सबसे पहले apprehension होता है कि अरे वैक्सीन लग गया, हमें क्यों लगा रहे हैं वैक्सीन, हमें तो वैक्सीन ऐसे ही दे रहे हैं और इससे तो हमें खतरा हो सकता है. सी खतरा होना ना होना, it is a part of science. Everything come with its own benefits also, risk also, and complication also. It is a part, it is a process. But point one, if you are taking a treatment of any disease, suppose हम tuberculosis का treatment ले रहे हैं, see TB की दवाइयों के भी side effects होते हैं, but we need to calculate the risk and benefit ratios. अगर किसी चीज़ का treatment हमें लेने से हमें फ़ायदा होता है लिटरेचर के हिसाब से, तो हमें वो काम करना होता है. एग्जैक्टली. Keeping in mind and safeguarding the side effect of TB medicines. Same is your vaccination. वैक्सीनेशन होने से कभी कभी हो सकता है कि किसी को बुखार आ जाए, या किसी को लोकल साइट पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, या लोकल साइट पे हल्का हल्का पेन हो जाए, बट उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट हमें देखना है. ब्रॉडर एस्पेक्ट कैसे कि वो हमें बीमारी से बचाएगा, वो हमें हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सकता है, वो अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमसे दूसरे को फैलने वाले इन्फेक्शन से बचा सकता है. यानी जो रिस्क है वो पीछे रह जाते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं दे आर टू नेक्स्ट एक्सटेंट और टू नेक्स्ट लेवल. द बेनिफिट्स आर टू मच ओवर द रिस्क वी आर हैविंग इन टेकिंग द वैक्सीनेशंस. So that's the irony कि कोविड में people were dying, like taking a vaccine was almost like an achievement there कि हाँ मुझे वैक्सीन मिल गया. They were literally dying to take the vaccine. Yes. So now coming to a point where pregnancy, जैसे कि pregnancy में भी काफ़ी conditions होती है जिसमें vaccination भी बहुत important role play करता है. Yes. So can you tell us the type of vaccines which are essential for a woman to take? सी इन प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें आप 2 लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, एंड बी इट 3 वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मदर एंड योर चाइल्ड. सो सबसे पहले हम किसी भी, कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे माँ हो, हमेशा बोला जाता है कि भाई अपना ध्यान रखना है. तो वो जो ध्यान रखना है, जो सबसे इमोशनल जो वर्ड है, वो ध्यान कैसे रखेंगे आप? ध्यान आप रखेंगे या तो खान पान अच्छा खाएंगे, या अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करेंगे, या अपना सोशल डिस्टेंसिंग या क्राउडेड एरिया से बचना. एंड मेडिकली कैसे ध्यान रखेंगे? बाय हैविंग योर वैक्सीनेशंस. वैक्सीनेशन कौन सा लग सकता है? किसी भी प्रेगनेंसी में जो एक जनरल वैक्सीन होती है, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है निमोनिया से बचने के लिए, फ्लू वैक्सीन होता है ईयरली फ्लू से बचने के लिए, ये सब वैक्सीन आप लगा सकते हैं. दूसरा, क्योंकि कुछ वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सो उस स्पेसिफिक गाइडेंस और उस स्पेसिफिक पाथ के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ही विल गाइड यू द बेस्ट. ओके. तो ऐसा होता है कि जो पीपल अराउंड द लेडी है दे से कि सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेना, इट माइट लीड टू मिसकैरेज, नहीं लेना चाहिए. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस मिथ? Yeah, as you rightly use the word myth, see, it is actually a myth. So we are here to debunk the myths. So talking about debunking the myths is like if we will read about it, we will make ourselves aware. Don't go by my words or any other doctor's word. You yourself should read and educate our own self कि हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं.
सो जो लिटरेचर ये कहता है कि वैक्सीनेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं और हमें बचाना भी चाहिए। वैक्सीन कौन सा लगा सकते हैं, कितना सेफ है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए आई थिंक द डॉक्टर, योर ट्रीटिंग डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट और वट एवर योर फैमिली फिजिशियन इज़ द बेस्ट पर्सन, ही विल गाइड यू द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड विद इट। राइट। सो ऑल्सो ये है कि मेरे घर का एग्जाम्पल है छोटा सा, कि आई जस्ट आस्क्ड माई फादर that I feel that now you should start taking flu vaccine every year. So he took the flu vaccine, and then my mom had this question कि when I can take this vaccine or what. So people also think कि men and women के maybe vaccine same नहीं होते हैं. Yes. So ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका सोसाइटी का, एंड इवन आई ऑब्जर्व द सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को एक कपल दिखाने आया, सपोज उसका जो हस्बैंड है ही इज़ बीन डायग्नोज्ड एज आस्थमा, एंड आई टेल देम कि भाई एज पर द गाइडलाइंस गो फॉर योर न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन और फ्लू वैक्सीनेशन। तो मैंने उसको फिर वैक्सीन के जो फ़ायदे होते हैं जिस तरह से गाइडलाइंस में लिखा है, आई टेल देम कि ये फ़ायदा होता है। तो अटेंडेंट जो साथ में आया है वो पूछता है, तो सर ये फ़ायदे होते तो फिर तो हम भी लगा सकते हैं वैक्सीन, पर हमें तो दमा नहीं है, तो क्या हम लगा सकते हैं इस वैक्सीन को? एंड माई आंसर टू डैट इज़ येस। बीमारी होने के बाद ही वैक्सीन लगती है? नो, करेक्ट। वैक्सीन इज़ अ सेपरेट चैप्टर, वैक्सीन इज़ अ सेपरेट एंटिटी। वैक्सीन एक बिल्कुल अलग रास्ता है अपने आप को बीमारी से बचाने का, और अगर बीमारी हो गई तो उसे गंभीरता होने से बचाने का। यानी कि जो वैक्सीनेशन होता है वो बीमार आदमी के लिए नहीं, वो सबके लिए होता है। कौन सा लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, योर डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर द सेम। अभी यही चीज़ में ये बात भी है कि जब भी कोई एक पेशेंट एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट H1N1, सो तभी उनको समझ आता है, तभी उनका डॉक्टर आके उनको बताता है कि अभी इसके लिए वैक्सीन होती है, अगली बार से इसके लिए वैक्सीन ले लेना। बट देन दे आर सो मच इन हरी कि ठीक है हम अभी ले लेते हैं। उनको नहीं पता चलता है कि ये कब एक्चुअली इसका असर होगा और कब इसको लेना चाहिए। यस। सो जब हमें बीमारी होती है, कोई भी जब अक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो यूजुअली लिटरेचर ये कहता है कि अक्यूट इन्फेक्शन होने के मिनिमम 4 वीक्स के बाद ही कोई भी वैक्सीन लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द लिटरेचर सेज। एंड सेकेंडली, जब हम बीमार पड़े तो हम डॉक्टर से मिले, हमारा नॉलेज बढ़ा, हमारा अवेयरनेस बढ़ा, तो हमारा जॉब एज अ पेशेंट भी और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी ये होना चाहिए कि भाई मैं बीमार पड़ा, अब मेरा कोई और पारिवारिक जना या मेरा कोई यार दोस्त भी बीमार ना पड़े। Correct. उस चीज़ के लिए मेरे को जो मेरे डॉक्टर ने सिखाया या मेरी नॉलेज बढ़ाई, जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, इट इज़ माई जॉब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर, आई शुड गेट एंड टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स, और किसको क्या लगना चाहिए एज अ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन मैं उसको कराऊं। अब मुझे नहीं समझ में आता तो मैं अपने डॉक्टर से पूछूं। बट अगर कोई एक जना बीमार पड़ता है तो मेरा नज़रिया ये कहता है कि बीमार पड़ने से हमने खुद को एजुकेट करना है और हमने अपने परिवार और अपने परिजनों को भी एजुकेट करना है कि एटलीस्ट वो बीमार ना पड़े, तभी हम एक हेल्दी सोसाइटी अचीव कर पाएंगे। सो इन दिस केस इज़ वेल दैट अगर किसी को वैक्सीनेशन लेना है जाके, सो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द क्राइटेरियाज कि दे शुड बी अवेयर ऑफ कि एग्जाम्पल आई कॉमनली व्हाट आई हैव हर्ड इज़ दैट फीवर नहीं होना चाहिए। सो एनी अदर देन दिस? यस। सो जब भी हम कोई वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे कि किन किन में लगनी चाहिए, किन किन में नहीं लगनी चाहिए। जैसे कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं जिनमें वैक्सीन्स नहीं लगाई जा सकती, या अगर आपको रीसेंट बिल्कुल अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, अभी और ऑन एंटीबायोटिक्स, तो वैक्सीन नहीं लगाई जाती या नहीं एडवाइस करी जाती। तीसरा, अगर जिस स्पेसिफिक साइट पे वैक्सीनेशंस होना चाहिए उस साइट पे ऑलरेडी आपको कोई लोकल इन्फ्लेमेशन इंजरी है तो हमें अपने डॉक्टर को बताना है।
कोई स्पेसिफिक आपको एलर्जीज हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है, तो ही विल रीड अबाउट इट एंड टेल कि क्या वो एलर्जी का कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट इस वैक्सीन में तो नहीं है कि आपको Right. नुकसान ना हो. Okay. सो इट इज़ अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, इट इज़ एन एडल्ट वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं इसको. इट इज़ अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड यू योरसेल्फ कैन, आप खुद जाइए, खुद गूगल कीजिए, खुद पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और जिन्होंने नहीं पढ़ते या जिन्होंने नहीं पता था उनको बताइए, और समाज के लिए एक जागरूक सिटीजन बनिए आप. राइट. सो लास्टली आप अपने ये जो आप कितने चैलेंजेस फेस करते हो अपने पेशेंट्स को कन्विंस करने में कि यू हैव टू गेट द वैक्सीनेशन डन. दिस इज़ एक्चुअली अ चैलेंज. सी, जब हम पढ़ाई करते हैं या जब हमें ट्रेनिंग होता है हमारा, तो ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं. वो चीज़ें जब हम समाज में वापस बताते हैं, अपने पेशेंट्स को वापस बताते हैं, तो कुछ चीज़ें गुड टू हेयर होती हैं, कुछ चीज़ें अनप्लेजेंट टू हेयर होती हैं, क्योंकि हम सब लोग अलग सोच के, अलग नज़रिए के होते हैं. Correct. तो कई बार क्या होता है कि हमें एज अ डॉक्टर या मुझे एज अ डॉक्टर कई बार बहुत चैलेंज फेस होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं. मैं किसी भी चीज़ को सही या गलत कहने में कोई बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं मानता अपने आप को, बट दिस इज़ व्हाट द लिटरेचर टीचेस. इट्स माय जॉब, इट्स माय ड्यूटी. सो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बताना कि आपको लगानी चाहिए. वी आर सेल्फ समटाइम्स फील कि भाई कुछ हो ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, इतने ज़्यादा मिथ्स हैं, इतना ज़्यादा आई वुड से नेगेटिविटी अप्रोच है कि भाई मेरे को जब से लगाए तभी से मुझे कुछ हुआ है. सो आई ऑल्सो फेस, अगर सपोज 100 पेशेंट्स को वैक्सीन लगाया तो सपोज किसी एक को फीवर आ गया फॉर एग्जांपल, बट इट कैन हैपन. इट सी इट एवरी मेडिसिन, इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग, if you are having some water also, if we are 4 people in the room and we are having water, it may upset my stomach, but it will not upset you. That doesn't mean ki the whole company is bad. Correct. It means ki it varies from individual to individual. So make yourself aware, go talk to your doctor, dissolve the issue, learn about it and move forward. So are there some precautions that needs to be taken after getting a vaccine done? See, as we have been taught about, vaccinations are like safe. They're safe, irrespective of the age. We see बच्चा पैदा होते ही क्या लगता है, टीका ही लगता है. सो जो पैदा होते ही बच्चे को टीका लग रहा है, तो हमें एक बेसिक तो हमें इतना समझते हैं कि ये सेफ़ होती होगी इसलिए लगता है, एंड इसीलिए लगाया जाता है. दूसरा, थोड़ा सा ध्यान बस ये रखना होता है कि भाई अगर हम बहुत ही सीनियर सिटीज़न हैं और हम वैक्सीन लगा के जा रहे हैं और मन में थोड़ा डर है, एप्रीहेंशन है, तो एकदम से थोड़ा सा ड्राइव का थोड़ा सा ध्यान रखें. ठीक है, किसी को हो सकता है माइल्ड फीवर या थोड़ा सा फीवर का एपिसोड आए, तो अ स्मॉल NSAID विल हेल्प यू, जस्ट 1 or 2 डोजेज़. जैसा हमें कोविड के टाइम पे जब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन होता था तो भी हमें एक दे दिया जाता था कि आप किसी को कोई दिक्कत होती है, यू कैन टेक एन NSAID, आप एक दवाई ले सकते हैं. यू कैन कॉल योर डॉक्टर, टॉक टू हिम, ही विल गाइड यू, ही विल हेल्प यू. सो नो प्रॉब्लम. सो थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा. So thank you so much for joining us today and then helping us spread the awareness on the vaccination and giving your valuable insights as well. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. So to all our listeners, आज के एपिसोड से हमने ये जाना कि वैक्सीन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लंग हेल्थ. सो लेट्स जस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द myths surrounding the vaccines. So to all our listeners, if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such valuable health discussions. Until then, stay informed, stay healthy.